Good evening, everyone. In the previous class, we see some theoretical concept, and today we discuss some very important numerical. Okay, today we discuss some very important numerical. So, without wasting time, we can start. My first numerical is it's a very important numerical. My first numerical is suppose this is y-axis, this is x-axis. A particle is projected with initial velocity u. A particle is projected with initial velocity u, and theta is the angle of projection. Theta is the angle of projection. So the question is that prove that at the highest point of its projection, I repeat the question, a particle is projected with initial velocity u and mass of the particle is m. Theta is the angle of projection. Prove that at the highest point of its projection, angular momentum is m u cube. M u cube. Just 1 minute. किधर गयो किधर गयो हाँ m u cube sine square theta cos theta by 2g. Prove it. And for that, I give you 2 minutes. Is it okay, everyone? You understand the question? Hello? Yes, sir. All of you understand the question? So I give you. Okay. So let's see this question first. See, this is the highest point. So at the highest point, what is the angular moment? What is the momentum? Mu cos theta. Mu cos theta, because velocity at the highest point is theta. Now see, if this is your point, so this position is r. So if this angle is phi, this angle is also phi. So this angle is also phi. Now according to the definition of angular momentum is r cross p. So we can write here the angle is phi, not theta. So rp sine phi. So p into r sine phi. So this one is r along the basis cos perpendicular with the basis sine. So this is r sine phi, which is what? H max. So I think we can write p into h max. Anyone tell me what is the value of maximum height in that case? J square sin square theta by 2g. Yes. So this is mu cos theta and u square sine square theta by 2g. So basically you have m u cube sine square theta cos theta by 2g. এইভাবেই করেছিস না অন্য কিছু করছিস? ओके, अब देखो इसके ऊपर एक एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है. क्वेश्चन इज दैट दिस इज योर एक्स एक्सिस and this is your y-axis. A particle move in x-axis with some velocity. So let this is position 1, let this is position 2. The momentum is mv. Is it okay? But due to different position 1 and 2, the question is that show that their angular momentum is same. So if we suppose this position, let the position is r1, and if we suppose this position, let the position is r2. So what we can say, if this angle is phi 1 and this angle is phi 2, or you can write theta. So L1, that is R1 cross P, which is RP sine phi 1, as I mentioned it phi 1. So PR sine phi 1. Similarly, L2, that is R2 cross P. Is it visible? Yes. So R1, R2, R2, R2P sine phi 2, that is
P इंटू R2 साइन फाई 2। अब देखो दोनों का ये है R1 साइन फाई 1 और ये है R2 साइन फाई 2 इज H। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि R1 sin phi 1 is R2 sin phi 2 is height. So same height. So we can say PH. यहाँ पे भी we can say PH. So L1 is equals to L2 is equals to PH. Is it okay? You understand this one? Yes, sir. चलो. For your that good performance, मैं तुम लोग को एक और क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? And मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ऐसे ही गुड परफॉर्मेंस चॉकलेट दैट। गुड परफॉर्मेंस के लिए एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ और ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तुम लोग ये क्वेश्चन भी उतने ही तत्परता के साथ सॉल्व करोगे, ठीक है? हाँ, चॉकलेट तो मैं दे सकता हूँ लेकिन उसके लिए तुम लोगों को सामने आना पड़ेगा ना। यहाँ से मैं चॉकलेट कैसे फेंकूं, बोलो? इज इट ओके? ओके। तो आज एक स्टूडेंट आया था मेरे सेंटर में और तुम लोग ये गुड परफॉर्मेंस के लिए मैं तुम लोग को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसा है कि एक रेक्टेंगुलर एक स्क्वायर स्लैब है, ठीक है, जिसका रेडियस जिसका लेंथ एंड ब्रेथ है 4r, ठीक है, और मास है m। इज इट क्लियर? मास है m। अब इससे हम लोगों ने क्या किया, 4 सर्कल मतलब सर्कुलर डिस्क को काट के निकाल दिया। कितना? 4 सर्कुलर डिस्क को काट के निकाल दिया। ये एकदम सिमेट्री है, मुझे यहाँ पे सिमेट्री नहीं दिखाई दे रहा है, but these are exactly symmetry, ठीक है? ये O पॉइंट है। So we remove 4 symmetrical disc from this rectangular square slab whose length and breadth are 4r. Find the moment of inertia of the remaining square about O perpendicular with the plane. Is it okay? Hello? Yes, sir. Find the moment of inertia of the remaining portion. Remaining portion कहने का मतलब है ये जो पोर्शन है इतना का about O perpendicular with the plane. So for that I give you 2-3 minutes. चलो, hello? Okay, let's try this question. তারপরে আমরা আজকে বেশ কিছু ভালো ভালো নিউমেরিক্যাল দেখব। See, first of all, we have to find out the moment of inertia of the whole square plate about the point O. So moment of inertia of কে রে স্যার স্যার করছে ভাই, কে? Moment of inertia about O, that this is one axis. If we consider this one as an axis, so moment of inertia is 1/12, total mass is m, and L এর জায়গায় এখানে কত আছে? 4r, তো 4r square. So what you have, 1/12 m into 16r square. তো কে কত হয়ে গেল? 16/12 mr square. Similarly এটা কত হবে? এটাও হবে 16/12 mr square. So এটা কত হবে? এটা হবে এই দুটোর সাম about the z axis, about O perpendicular with the axis is mr square. 16/12 plus 16/12
that is mr square 32/12 মানে কত যাবে 16 6 8 3 so 8/3 mr square total moment of inertia. Is it okay everyone? Is it okay everyone? Is it okay? Yes, है ना sir. किसी तो बॉल है। अच्छा अब देखो ये जो हमने डिस्क निकाला मास ऑफ ईच डिस्क हम लोग अगर m मानते हैं तो इसका क्या होगा टोटल मास इज m टोटल एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लेट इज 4r square into area of each disk pi r square तो ये हो गया pi m/16 for each. Is it okay? Yes, sir. अच्छा ये जो है अगर मैं इसका सेंटर लू O1 सो O और O1 का बीच का गैप कितना है √2r. कैसे 2r होगा √2r. √2r so we can say moment of inertia of the cutout disk अच्छा ऐसा कितना है 4 है ना so we multiplied by 4 so moment of inertia of cutout disk about O is 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ईच का है हाफ mr स्क्वायर मैं m का वैल्यू बाद में डालूंगा ईच इज mr स्क्वायर प्लस m into √2r whole square. Is it okay? Parallel axis theorem. Yes, sir. This one we have to find out, and this is another axis. So this distance is parallel distance. So what we have 4 1/2 mr square plus 2 mr square that is 4 रखे 5 तो 4 into 5/2 mr square that is 10 mr square और m का वैल्यू कितना है m का वैल्यू है 10 m का वैल्यू कितना है पाई m/16 r स्क्वायर तो ये हो जाएगा 5/8 तो 5/8 पाई mr स्क्वायर तो ये है मेरा कटआउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये है मेरा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग इक्वल्स टू 8/3 mr square minus 5/8 pi mr square. So we can take mr square common 8/3 minus 5 pi/8 is the answer. Is it okay everyone? Yes, sir. Clear everyone? अच्छा अब हम लोग come back to my original lecture. तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था the relation between torque and angular momentum. Torque equals to r cross f, angular momentum L cross p, angular momentum L is I omega, torque is dl by dt and from dl by dt torque is I alpha. ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था. अब इसके ऊपर बेस करके आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे. पहला जो न्यूमेरिकल है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल. ये क्वेश्चन कभी कभी ग्रेविटेशंस में भी पूछता है. ठीक है, ये क्वेश्चन कभी कभी ग्रेविटेशन में भी पूछता है. क्वेश्चन ऐसा है, ड्यू टू सम रीजन इफ द रेडियस ऑफ अर्थ r become r/2, due to some reason if the radius of earth r become r/2, find the new time period of earth. मतलब कोई कारण से अगर रेडियस ऑफ अर्थ r become r/2 हो जाए, न्यू टाइम पीरियड जो पहले 24 आवर था अभी कितना होगा, दैट इज द क्वेश्चन. तो देखो ऑब्वियसली ये जो हुआ है ये खुद ब खुद हुआ है, अर्थ सिंक्रोनाइज कर गया है.
तो इस सिंक्रोनाइज होने में इसका टॉर्क का कोई काम नहीं है, मतलब नो एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई इन दिस यूनिवर्स। ऐसा नहीं है कि आसमान में रजनीकांत बैठा हुआ है और अर्थ को गोला को ऐसे टक 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 करके घुमा रहा है। तो दैट मीन्स नो एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई। एज द नो एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग बोलेंगे टॉर्क दैट इज dl by dt equals to 0. So L is constant. तो L is constant मतलब पहले का एंगुलर मोमेंटम बाद का एंगुलर मोमेंटम सेम होगा। तो पहले के लिए हम लोग लिखेंगे I1 ओमेगा जो शुरू में था, बाद में I2 ओमेगा 2 which is the new one, or you can write mu also. तो अर्थ is a sphere 2/5 mr square omega 2/5 due to synchronize it does not affect its mass, so mass is as it is, but the according to question radius is r/2 into omega 2. तो ये 2/5 cancel, cancel, r square cancel, omega 2 is 4 omega. तो देखो ये क्वेश्चन को ऐसे करके बोल सकता है, थोड़ा डिफरेंट वे में भी बोल सकता है। जैसे मैंने बोला रेडियस इज r/2, वो ऐसे भी बोल सकता है कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ बिकम v/16। तो मतलब एक ही हो गया, v इज 4/3 पाई r क्यूब, तो v/16 दैट मीन्स 4/3 पाई r क्यूब by 16 which is 4/3 pi nu r cube. So r cube is r/16, so r is r/2. हाँ, समझ में आया ये बात? तो वो वॉल्यूम देख के भी बोल सकता है कि रेडियस बिकम r/2, वॉल्यूम v/16 हो गया तो रेडियस r/2 हो गया, और वो ऐसे करके सीधा करके भी बोल सकता है। मतलब यही है, 16 की जगह पे 32 बोलेगा तो उस हिसाब से चेंज होगा। अब देखो जब तुम ये मिल गया, अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? एक सर्कुलर मोशन अर्थ इटसेल्फ, मतलब अपना जो एक्सिस पे घूमेगा 24 आवर के लिए, सर्कमफरेंस बाय स्पीड। तो सर्कमफरेंस स्पीड इज r ओमेगा, r कैंसिल, 2 पाई बाय ओमेगा, मतलब टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। सो न्यू टाइम पीरियड बाय ओल्ड वन, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, ओल्ड वन बाय न्यू। सो ओमेगा न्यू वन इज 4 ओमेगा, तो t new is 1/4 of the t old, तो 1/4 into 24 hour that is 6 hour, मतलब 6 घंटा में एक दिन होगा। तो अगर 6 घंटा में एक दिन होता तो 4 दिन इज इक्विवेलेंट टू अभी का एक दिन। मतलब तुम लोग स्कूल में जाता दिन में, अगला दिन स्कूल छुट्टी होता, दिन में सोने जाता, अगला दिन उठता, 2 दिन हो गया, बाकी एक दिन में पढ़ाई लिखाई सब करता, और एक दिन में बाकी खाना पकाना, हाँ बाकी सब काम जितना भी काम है सब 6 घंटा बाकी काम के लिए, 6 घंटा पढ़ाई लिखाई, 6 घंटा स्कूल और 6 घंटा सोना, 4 दिन में एक दिन। समझ में आया? इज इट ओके? ओके, सो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखो ऐसा ही कुछ क्वेश्चंस। अच्छा তোদেরকে আমি এই রোটেশনের শীট দিইনি না? rotation, work energy, center of mass, relative velocity. সেন্টার অফ মাসের দিয়েছি তো। Center of mass sheet দাও। এ মা, আমি আজকে রাত্রিবেলা বসতেই হবে আমাকে, দুনিয়া इधर उधर हो जाए, आज तो मैं बैठूंगा ही बैठूंगा। স্যার রিলেটিভিটিটা দিও না, আরে এই সপ্তাহে টেস্ট হবে না। হবে না? বেকি হবে না, এটা তুমি বলবা তো। আমি কিছুই করিনি, দ্যাট ইজ ট্রু। দেখছি আমি, তাও আগে তোদের এগুলো বানিয়ে নি, তাহলে আমি এই উইকে না নি, নেক্সট উইকে আমি তোদের মোশন ইন টু ডাইমেনশন নেব। ডিপিএস এর এক্সাম চলছে তো। আচ্ছা সি দা নেক্সট কোশ্চেন। তোরা তো আমাকে অ্যানসার শিটও দিলি না, বড় বড় লেকচার কি মারিস? আমি তো দিয়ে দিছি। কই দিছিস? কত পাইছিস? ও আমি তো অ্যানসার শিট দিইনি না। Question number 20. देखो very good question, listen up. A thin uniform circular disk of mass m and radius r is rotating in a horizontal plane about an axis passing through its center and perpendicular to its plane with an angular velocity omega. तो देखो एक डिस्क है
ठीक है, इसका मास m है, रेडियस r है और मूविंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब क्या बोल रहा है कि omega, another disk of the same dimension but mass m/4 is placed gently on the first disk coaxially, the angular velocity of the system now। तो इसके ऊपर gently मैं एक और डिस्क डाला। ये जो gently वर्ड है जिसका मास है m/4, gently कहने का मतलब है no external torque apply। तो no external torque apply मतलब angular momentum remain constant, मतलब T1 L1 is equals to L2। तो I1 ओमेगा, I2 ओमेगा 2, तुम्हें न्यू ओमेगा चाहिए इन टर्म्स ऑफ द ओल्ड वन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क ओल्ड वन m r स्क्वायर ओमेगा, सपोज इफ वी सपोज 1 इज ओमेगा। अब देखो इसमें कितना मैंने मास एक्स्ट्रा दिया है, m/4, सेम डायमेंशन मतलब रेडियस एंड ऑल आर सेम। इज इट क्लियर? Yes, sir. वो जिम में या बॉडी बिल्डिंग में दिखाता है ना, पहला वाला लोहा उठा लिया, फिर दोनों साइड से 2 चक्ति और लगा दिया, दैट एक्सिस इज कॉल्ड द कोएक्सियल एक्सिस, और उसके अंदर एक चक्ति के साथ एक और चक्ति लगा दिया, तो एवरीथिंग इज सेम, सिर्फ मास बढ़ गया। तो मास जो बढ़ गया वो बढ़ा m प्लस m/4 r स्क्वायर ओमेगा 2 विच इज द न्यू वन। r स्क्वायर गया, हाफ ऑफ गया, तो ये हो गया 5/4 m ओमेगा 2, गया, so omega 2 is 4/5 omega। Is it clear? Yes, sir. Yes. ऐसा तो बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है। मैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो ये भी क्वेश्चन आईआईटी में पूछा हुआ है। और इसके बाद मैं एक और अच्छा 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन के बाद मैं तुम लोगों को आज एक और अच्छा, बहुत सारा अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और मैं पहले ही बता दे रहा हूं क्योंकि तुम लोगों को देने से 1-2 बच्चा छोड़ के तो कोई करता नहीं है, और सेकेंडली थोड़ा टाइम भी ज्यादा लग जाता है। ओके देखो क्वेश्चन, फिर भी मैं चलो इस क्वेश्चन में टाइम दे सकता हूँ 2 मिनट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A rod of length L and mass M is hinged at the point O। एक रॉड है जिसका मास M है और यहाँ पे इसको सपोर्ट करके झुलाया गया है जिसका लेंथ L है, ठीक है। A small bullet of mass M hits the rod with velocity v as shown in the figure। यहाँ पे एक बुलेट है इसका मास M है, मूविंग विद वेलोसिटी v है, ये यहाँ पे आके धक्का खाएगा, ठीक है। A small bullet of mass m hits the rod with velocity v as shown in the figure। The bullets get embedded in the rod। Embedded मतलब इसमें जाके चिपक गया। Find the angular velocity of the system just after the impact। So tell me the angular velocity just after the impact। ये है small m, ये है capital M। फटाफट बोलो। So I give you 4 option। Option A, omega is 3 mv by m plus 3 ml। Option B, 2 mv by m plus 3 ml। Option C, 12 mv by m plus 6 ml। Option D, 12 mv by m plus 12 ml। What is the answer? Abhirup? Option 2. So now let's see। देखो before, so obviously again no extra torque apply, so L1 is equals to L2। तो before hitting or before impact इसका momentum क्या है, mv, and perpendicular distance क्या है, L। हो गया angular momentum? Is it okay? Hello? Yes, sir. And after that this point is fixed, so I omega। now what do you mean by I? देखो rod का end मतलब 1/3 m L स्क्वायर, और ये जो मास जो यहाँ पे चिपक गया ये पॉइंट मास है बिकॉज इट्स अ बुलेट। सो व्हाट इज द लेंथ L एंड मास इज व्हाट m, तो ml स्क्वायर, स्मॉल मास L स्क्वायर इनटू ओमेगा। इज इट ओके? Yes, sir. तो अब यहां से इसको मैं क्या लिख सकता हूं,
ml square plus 3ml square by 3 into ओमेगा। मुझे चाहिए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो ये मैं ऊपर आ जाएगा 3mvl by ml plus, अच्छा इफ वी टेक l square कॉमन तो m plus 3ml square, जहाँ से एक l को मैं हटा सकता हूँ, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आया 3mv by m plus 3m into l। देखो ये क्वेश्चन IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सो यू अंडरस्टैंड कि कितना अच्छा क्वेश्चन पूछता है। इज इट ओके? লিনিয়ার মোমেন্টাম কনজার্ভ করে যে ভেলোসিটিটা পাবো ওখানে এল ওমেগা দিতে পারবো না? লিনিয়ার মোমেন্টাম কনজার্ভ কি করে? এখানে তো অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম কনজার্ভ হবে, টর্ক জিরো, ফোর্স তো নট জিরো। এটা তো চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম তো হচ্ছে, এখান থেকে এইদিকে যাচ্ছে তো ডাইরেকশন চেঞ্জ হচ্ছে না। ঠিক আছে। ओके, अब देखो एक और क्वेश्चन है, ये भी इस क्वेश्चन पे 3-4 बार IIT नीट कितना सारा में खाली वो लोग डेटा चेंज करके इस कॉन्सेप्ट पे जो मैं अभी बताने वाला हूँ, इस पे भी बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन है। तुम लोग जब अगर बुक देखोगे एंट्रेंस का, ये सब के बहुत सारा क्वेश्चंस मिलेगा। कल मैंने एक बच्चा पढ़ने आया था, उसके पास देखे सिर्फ HC वर्मा है और कोई बुक नहीं है, और वो भी थ्योरी कुछ भी नहीं आता है। सर्कुलर मोशन का एक बैंकिंग ऑफ रोड दिखा के बोल रहा सर कैसे करेंगे। मैं बोला देखो इसका मेरा जो रिकॉर्डिंग है उसमें ये सब है, तुम उसको आराम से देखो फिर तुम सॉल्व करो। यहाँ से सिर्फ वो छोटा छोटा करके थ्योरी पढ़ोगे तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। मुझे नहीं मालूम मैंने क्या ऑफेंडेड बात बोला, उसको लगा मैं बोल रहा था कि HC वर्मा मत बनाओ। मैंने कभी ऐसा नहीं बोला HC वर्मा मत बनाओ। मैं बोला कि अच्छा, मैंने उसको फिर पूछा तुम्हारा पास रेफरेंस बुक क्या है? बोला सर कुछ बुक नहीं है, सिर्फ यही है। हम बोले कि एक अच्छा रेफरेंस बुक लो, हाँ कोई भी एक अच्छा, उसको भी देखो थियोरेटिकल क्वेश्चंस के लिए कि जो कि बोर्ड्स वगैरह में भी आता है, तुम्हें कॉन्सेप्ट भी आएगा, साथ ही साथ तुम न्यूमेरिकल के लिए करो तो फिर ठीक है। नहीं मालूम मैंने ऐसा क्या गलती बोल दिया, व्हाटएवर। देखो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं तुम लोगों को 2-3 जगह सिर्फ वैल्यू डेटा चेंज करके IIT में भी आया है, मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है। हाँ, कभी डिस्क बोल के, कभी सॉलिड सिलेंडर बोल के, डिफरेंट जगह ये क्वेश्चन आया है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम माय शीट। देखो एक डिस्क है, हाँ यहाँ पे एक सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट है। द मास ऑफ द डिस्क इज m, रेडियस ऑफ द डिस्क इज r। कोई बुक में ये, और इसके साथ एक रस्सी है, रस्सी के साथ ऐसे एक मास है जो m है। कोई बुक में ये दोनों मास m दे देता है, सेम मास दे देता है। कभी कभी डिस्क की जगह पे सिलेंडर दे दिया, हाँ सॉलिड सिलेंडर या हॉलो सिलेंडर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया खाली अलग अलग होगा। तो मैं पूरा फॉर्मेट में तुमको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, जिसमें तुम जैसा देगा तुम उस हिसाब से इसका कर सकते हो। और एक बार IIT में इसको सॉलिड सिलेंडर दे दिया और दोनों का मास सेम दे दिया, तो मास सेम दे देगा तो क्या होगा वो भी मैं बता रहा हूँ। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। अ यूनिफॉर्म disk of radius capital R and mass capital M is free to rotate about a fixed axis perpendicular to its plane and passing through its center. A string is wrapped over its rim and a block of mass M is attached to the free end of the string as shown in the figure. The block is released from rest if the string does not slip on the rim. मतलब ये फिसले नहीं, ये जैसे जैसे घूमेगा ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। हाँ, the block is released from rest if the string does not slip, इसका मतलब यही हुआ on the rim, then find the acceleration of the block, neglect the mass of the string। तो देखो ये नीचे जाएगा लेट विद द एक्सीलरेशन a, तो इधर लगेगा mg, इधर लगेगा टेंशन। सो मेरा पहला इक्वेशन तो बन गया mg माइनस t इज ma। इज इट ओके एवरीवन? अब देखो जब ये डिस्क घूम रहा है तभी ये नीचे जा रहा है, तो ये जो है यहाँ पे एक टेंशन लगा रहा है T, ये अगर ब्लॉक के लिए ऊपर है तो इस स्ट्रिंग के लिए नीचे है, और इसका ये रेडियस है। तो इस टेंशन, जैसे देखो ये मेरा डिस्क है, ऐसे ऐसे मैं अगर घुमाऊंगा इसको, ऐसे ऐसे फोर्स लगाएगा तो ये घूमेगा ना, ये घूम रहा है ना,
तो ऐसे ही घूमता है चक्की और ये ऊपर नीचे होता है। तो यहाँ पे जो टॉर्क लगेगा, अगर हम इधर लिखे टॉर्क फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टी इंटू आर, और हमें मालूम है टॉर्क इज इन टर्म्स ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन आई इंटू अल्फा होता है। इज इट ओके? यस सर। और हमें ये भी मालूम है एक्सीलरेशन के साथ एंगुलर एक्सीलरेशन का रिलेशन होता है आर अल्फा। तो अल्फा इज ए बाई आर, सो मैं इसको आई ए बाई आर लिख सकता हूं। सो टेंशन इज आई ए बाई आर स्क्वायर। कैन वी राइट दिस इक्वेशन नंबर 2? यस सर। So now if we put this one in this one, mg minus ia by r square is ma, which is mg is ma plus ia by r square। मतलब अगर मैं ma को कॉमन ले लूं, 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, एम काट सकता हूं, तो मेरा जो एक्सीलरेशन आया ये आया g बाई 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। ये है मेरा फॉर्मूला जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। अब देखो यहाँ पे अगर जैसे मैंने बोला कि इस क्वेश्चन में स्पेशली ये जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे ये एक डिस्क है जिसका मास कैपिटल एम है, और क्योंकि इसका मास कैपिटल एम है तो हम इस ए का वैल्यू जी बाई 1 प्लस आई के जगह पे लिखेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल एम आर स्क्वायर बाई स्मॉल एम आर स्क्वायर। तो समझ में आ रहा है? आर स्क्वायर कट गया, तो आर स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा? जी बाई 1 प्लस एम बाई 2m। तो ये क्या हो गया? 2mg बाई 2m प्लस m। इज इट ओके एवरीवन? यस सर। लेकिन अगर मानो यही क्वेश्चन जो मैंने बोला 2-3 साल पहले आईआईटी में जो दिया था, ये दिया था एक सॉलिड सिलेंडर और इसका मास दिया था m। तो सॉलिड सिलेंडर अगर है तो इसका क्या होगा? इट विल बी बिहेव लाइक ए डिस्क, और मास m मतलब दोनों m कट जाएगा। सो ए देखो क्या हो जाएगा? g बाई 1 प्लस 1 बाई 2 एम आर स्क्वायर बाई एम आर स्क्वायर। सो एम आर स्क्वायर कट गया, 1 प्लस 1 बाई 2, 3 बाई 2 मतलब 2 बाई 3g। देखा कितना सुंदर आंसर आया? तो ऐसे सुंदर करके भी वो आंसर ला सकता है, दे जस्ट चेंज द डेटा। लेकिन मैंने इसको रखा क्योंकि शायद चेंज ना भी करे, तुम सेम लिख दिया तो तुमने यहाँ पे गलती होने का चांसेस होता है। अगर अलग दे दिया तो तुम सेम लिख दोगे, लेकिन अगर मैं अलग कराऊं तो अलग में अलग लिख सकते हो, सेम में उसको चेंज कर सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चंस मिलेगा रैप किया हुआ। इसके अलावा अभी मैं इसको हटा दूं? हाँ। वीडियो तो रिकॉर्डिंग हो ही रहा है वैसे। इसके अलावा आज मैं तुम लोगों को एक बहुत ही सुंदर लेक्चर कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। हालांकि कुछ दूसरा क्वेश्चंस के कारण कितना टाइम मिलता है देखते हैं। देखो कॉन्सेप्ट ये है कि हेडिंग, यू कैन गिव द हेडिंग सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। So whenever a system is in equilibrium, so if a system is in equilibrium, if a system is in equilibrium, देखो इसके पहले क्या था? सिस्टम इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो। अभी अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो दोनों जीरो हो सकता है, फोर्स भी जीरो हो सकता है, टॉर्क भी जीरो हो सकता है। तो दोनों का जीरो होने से मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है, हम लोग सबसे पहले उसको देखेंगे। तो इफ अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, नेट, first of all net torque is zero, so net torque is zero, मतलब tau is dl by dt zero। अगर ऐसा होता है तो t equals to t1 plus t2 t3 dot 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 tn equals to zero, ये इक्वेशन नंबर 1 हो सकता है। एंड एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, यहाँ पे लिखो इसको, एन एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट क्योंकि t इक्वल्स टू dl by dt इक्वल्स टू 0, l इज कांस्टेंट, है ना?
So angular momentum constant मतलब L is L1 L2 dot 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 ln लिख सकता है, and net force is also 0. So F is F1 plus F2. If you want, you can write the vector sign also. Net force dot 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 Fn equals to 0, and momentum, linear momentum term is constant. क्यों? क्योंकि F जो होता है dp by dt equals to 0, P is equals to constant. Is it okay? So P is P1 plus P2 dot 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 Pn. Equation number 4. ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा, फर्स्ट एंड 3 में 0 लिखा है, थर्ड एंड फोर्थ में L इक्वल्स टू लिखा है, 0 नहीं लिखा है। ये दोनों कांस्टेंट है और ये दोनों का नेट वैल्यू 0 है। इज इट ओके एवरीवन? यस सर। अब देखो, इसके ऊपर हम तुम लोगों को क्वेश्चंस दिखाते हैं। 2 क्वेश्चन हम एनसीईआरटी से सॉल्व करेगा और एक क्वेश्चन एचसी वर्मा से सॉल्व करेंगे। तो दीज आर रियली वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन तुम्हें एनसीईआरटी में भी मिलेगा, बहुत सारा क्वेश्चन तुम्हें एचसी वर्मा में भी मिलेगा और भी अलग अलग बुक में मिलेगा। सो दिस वन इज वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, जिसको तुम इसके ऊपर बेस करके तुम कर सकते हो। तो मैं शुरू करने वाला हूं। देखो, पहला क्वेश्चन मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ के दिखा रहा हूं कैसे सॉल्व करना है, फिर सेम वे में यू आल्सो ट्राई जहां ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज अ मेटल बार 70 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 kg मास। तो एक मेटल बार है जिसका टोटल लेंथ है 70 सेंटीमीटर एंड मास है 4 kg। तो 4g, अच्छा अगर ये 70 है तो इसका जो मिडिल होगा कितना होगा? 35 is 4 kg mass is supported by 2 knife edges placed 10 centimeter from each end. तो यहाँ पे एक knife edges है और यहाँ पे एक knife edges है which is 10 centimeter from each end. A 6 kg weight is suspended at 30 centimeter from one end. मानो इसी से हमने यहाँ पे एक 6 kg मास को सस्पेंड कर दिया which is 30 centimeter. Is it clear? Find the Yes sir. Find the reactions at the 2 knife edges. Assume the bar to be of uniform mass. Obviously uniform नहीं होने से अलग अलग हो जाएगा। तो देखो, मुझे क्या निकालना है? मुझे यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन R1, यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन R2 निकालना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, देखो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इसको हम जस्ट रैंडमली A B C D मान सकते हैं। तो देखो, as the system is in equilibrium, net force is 0. Is it okay? Yes sir. So net force is 0 माने total upward force balances total downward force. So first of all we can say R1 plus R2, the upward force equals to 6g plus 4g which is 10g. अगर हम g का वैल्यू 10 ले, हालांकि बुक में शायद 9.8 लिया था, so ये मेरा 100 आएगा। मुझे वैल्यू थोड़ा आसानी से मिलेगा। अब देखो, इस तरह का क्वेश्चन में एक चीज याद रखना, ये ए बी सी डी इस चारों पॉइंट का रिस्पेक्ट में इफ यू वांट टू कैलकुलेट द टॉर्क इज 0। तो कभी कभी हम लोग एक से ज्यादा 2-3 पॉइंट में दिखाते हैं अगर आंसर नहीं मिल रहा है या बहुत सारा वेरिएबल्स है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है, एक पॉइंट में ही दिखाने से तुम्हारा आंसर आ जाता है। सो ऑन दैट बेसिस हम क्या बोल सकते हैं कि कोई भी एक रैंडमली पॉइंट हम चूज करेंगे जहां पे मेरा नेट फोर्स 0 है। अब देखो, अगर मैं इसमें करूं, प्रॉब्लम क्या है, ए पे करने से ए का वैल्यू नहीं मिलेगा क्योंकि ए के लिए ए पॉइंट में फोर्स इनटू डिस्टेंस 0 है। तो मुझे क्या निकालना है? R1 एंड R2 निकालना है। ए एंड डी ये दोनों पॉइंट सिलेक्ट नहीं करेगा क्योंकि तब मुझे फिर एक इक्वेशन लिखना पड़ेगा।
अब ऐसा पॉइंट सिलेक्ट करेंगे जहां पे मेरा सबके लिए वैलिड है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सेंटर इज द बेस्ट, सो सी इज द सेंटर, सो वी कैन से लेट नेट टॉर्क is 0 at point, तो बाकी पॉइंट में भी दिखा सकते हैं, इवन यू कैन ट्राई फॉर बी आल्सो, यू गेट द सेम आंसर। आई एम हियर शो यू विद रिस्पेक्ट टू सी। ओके, सो नेट टॉर्क इज 0 एट पॉइंट सी। अब देखो सी पे अगर नेट टॉर्क 0 हो रहा है, सी पे अगर नेट टॉर्क 0 हो रहा है, तो टॉर्क का मतलब क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और मुझे सी पॉइंट में जाना है, तो इधर से सी जाएगा, इधर से सी जाएगा, ये जो है इधर से सी जाएगा। इज इट ओके? तो देखो मुझे सी पे जाना है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मुझे ये वाला एक टॉर्क मिलेगा। ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज सर। ये हो गया क्लॉकवाइज। ये जो होगा ये क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। और ये जो 6 से 4 की तरफ जा रहा है T3, ये क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड, एंटी क्लॉकवाइज। तो नेट टॉर्क 0 का मतलब है जितना सारा क्लॉकवाइज है दैट इज इक्वल्स टू, ऐड कर दो, दैट इज इक्वल्स टू जितना सारा एंटी क्लॉकवाइज है। तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि T1 which is clockwise is equals to T2 which is anti-clockwise plus T3 which is anti-clockwise. Is it okay? Yes sir. अब देखो T1 में क्या है, फोर्स इज R1। अच्छा, force R1 into AC, perpendicular distance, that distance AC equals to T2 which is R2 into perpendicular distance क्या है CD plus T3 कहां पे है, T3 कहां पे है, 6G into perpendicular distance, देखो ये है BC। अब देखो AC जो है ये है 10, ये है 35, so what about AC? This one is 35, this is 10, so what about AC? 25. 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में करने का जरूरत नहीं है बिकॉज दिस ऑल आर इन सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, कट गए हो। हाँ, R2 CD, how much is the value of CD? 25. 25. And 6G, how much is the value of BC? 5. 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर गए हो, तो मुझे काटने का भी जरूरत नहीं है, तो R1 माइनस R2 इंटू 25, 6G का वैल्यू 10 इंटू 5, सेंटीमीटर 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 काट दिया, तो 5 5 25, 5 5 10, तो R1 माइनस R2 इज 12। इज इट ओके? Yes sir. सो यहाँ पे हुआ R1 प्लस R2 इज 100, यहाँ पे है R1 माइनस R2 इज 12, सो R1 माइनस प्लस R2 is 100, R1 minus R2 is 12. So देखो 2R1 is 112, R1 is 56 Newton, R2 is 44 Newton. So you get the normal reaction. Yes sir. Okay. Yes sir. Okay. Sir, freeze হয়ে যাচ্ছে। Good. Okay. Now see the second question. Second question में क्या है कि एक স্যার একটা বডি যদি তোমার ট্রান্সলেশনাল মোশনে থাকে আর রোটেশনাল ইকুইলিব্রিয়ামে, তো আমরা টর্ক সেন্টার অফ মাসের অ্যাবাউট কেন নেব?
হ্যাঁ, কারণ ও তো রোটেশনে মোশনে আছে না। সেন্টার অফ মাসের অ্যাবাউট কেন লিখবো আমি তোমার ইসে টর্ক ব্যালেন্স করবো? না না, এমন কোনো কথা না। যদি ইকুইলিব্রিয়ামে থাকে তুই যে কোনো পয়েন্টের রেসপেক্টও নিতে পারিস। কিন্তু জেনারেলি কি হয় যে সেন্টার অফ মাসকে আমরা মাস ধরে ও রেসপেক্টে করি না, এইজন্য আর কি। বুঝতে পারলি? তোকে আমি একটা কোশ্চেন দেখাবো যে নট নেসেসারি সবসময় সেন্টার অফ মাসের রেসপেক্টে, ল্যাডারের কোশ্চেনটাই দেখাবো। হ্যাঁ দেখ, আ কার ওয়েট 1800 কেজি। তো মনে কর আমার কাছে একটা কার আছে, লিমুজি বানিয়ে দিলাম। হ্যাঁ, এই কি বলে? লম্বা লম্বা কারগুলোকে কি বলে? হ্যাঁ বড় বড় লম্বা লম্বা কারগুলো। হ্যাঁ, তো কি লিমুজি না কি বলে না? A car weight 1800 kg, ठीक है? The distance between its front and back axle is 1.8 meter. 1.8 meter. ठीक है? The center of gravity is 1.05 meter behind the front axle. মানে এখান থেকে এখানে হচ্ছে 1800 g. ठीक है? And that distance is 1.05 meter. So 1.8 minus this is 0.75 মিটার। এটা হচ্ছে ফ্রন্ট অ্যাক্সিস, এটা হচ্ছে ফ্রন্ট অ্যাক্সেল, এটা হচ্ছে ব্যাক অ্যাক্সেল। ডিটারমাইন দ্য ফোর্স এক্সার্টেড বাই দ্য কি লেখা আছে, ও लेवल ग्राउंड ऑन ईच फ्रंट व्हील एंड ईच बैक व्हील। देखो ये जो फ्रंट में एक एक्सेल में 2 व्हील है, यहाँ पे ईच एक्सेल में 2 व्हील है। तो अगर हम लोग इस व्हील का मतलब इस एक्सेल का अगर हम लोग नॉर्मल रिएक्शन निकाल ले, देन डिवाइडेड बाय 2 वी गेट फॉर ईच व्हील, क्योंकि एक एक्सेल में 2 व्हील है। इज इट ओके? নো স্যার, বুঝলাম না। আরে বাবা, একটা এক্সেলে কটা চাকা থাকে? দুটো চাকা থাকে তো। হ্যাঁ তো ফ্রন্ট এক্সেল আর ব্যাক এক্সেল বার করলাম, আর ইচ হুইল বলেছে, তাহলে ডিভাইডেড বাই 2 করে দেবো। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। আরে একটা গাড়িতে 4টা চাকা থাকে না, 4 চাকা না হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ একটা। এখানে তো এক্সেল দিচ্ছে না, তো বলছে ইচ হুইল বলেছে, তার মানে डिवाइडेड बाय 2 করে দেবো। ठीक है? ইচ एक्सेल বললে যা ছিল তাই। तो देखो मैंने इसको ए पॉइंट माना, इसको बी पॉइंट माना, इसको सी पॉइंट माना। नॉट नेसेसरी सेंटर, लेकिन यहाँ पे देखो मैंने बार बार बोला ये दोनों चाहिए, ये दोनों चाहिए, तो इसका रिस्पेक्ट मैं दिखा सकता हूँ। इज इट ओके? यस सर। हाँ, तो अब देखो सिंपल मैं क्या लिखूंगा, R1 प्लस R2 दैट इज 1800 इंटू या 1800 G, that is 1800 into 10, that is 18000 Newton. Is it okay? यस सर। Let the net torque is 0 about the point C. इतना कुछ मैं लिखा नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। T1 clockwise, T2 एंटी क्लॉकवाइज। इज इट ओके? दो ही है ना? हाँ सर, तो ये सो टॉर्क क्लॉकवाइज, टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोग क्या लिखेंगे, R1 इंटू 1.05, R2 इंटू 0.75, है ना? पॉइंट को हटा दो, तो ये हो गया 15 3 দিয়ে গেলে 15 না না 25 5 50 75 না, এটা 3 দিয়ে গেলে 100 কত হয়ে যাবে রে, 20 আর 35 30 90, 35 बट ये कितना होगा, 30 30 60 30 90 30 और इधर 15, तो 35 ना, 3 দিয়ে কাটছে না। 35 ঠিক আছে। 35 তো 3 4 अब ये 5 10 5 5 25 60 5 7 35, so R1 is 5/7 R2, is it okay? So इसको मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, 5/7 R2 प्लस R2 is 1800, तो 7 7 8 9 10 12,
12R2 equals to 1800 into 7. So R2 is 12600. 18000 into 7 by 12 ना? Yes sir. ना? तो इसका वैल्यू आएगा, R2 का वैल्यू आएगा कितना आएगा? R2 का वैल्यू 10500 न्यूटन और R1 कैलकुलेशन करके आएगा इतना, तो तुम लोग कर ही लोगे। कितना आया? 7500 न्यूटन। ये पर एक्सेल आया ना, डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, ठीक है? ओके सर। और एनसीईआरटी बुक से थोड़ा आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि वहां पे 9.8 लिया है, हम लोग 10 लिया है, ठीक है? यहाँ पे 9.8 लिया, हम लोग 10 लिया है। अच्छा मुझे 1 मिनट और दो, मुझे वो ओके। सो द लास्ट क्वेश्चन देखो, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इतना जब करा दिया, इसको भी करा ही देते तो मैं नेक्स्ट दिन सीधा रोलिंग में चला जाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। हाथ पूरा पता कुछ रे। তোমার পার ডে কতগুলো ক্লাস থাকে? আর বলিস না, খালি ক্লাসের জন্য না রে, 3-4টা, 2-3টে ক্লাস থাকে। তারপরে এই এখন এই একটা আমার যে বাড়িটা আছে না, ওখানে একটু কাজ শুরু হয়েছে, ওইটা নিয়ে ঝামেলা। বাড়িতে কাকু আছে, কাকু কাকিমা আছে, গাছ একটু দেখাশোনা করি, সব নিয়ে এমন অবস্থায় পড়ে গেছি না, আমি না মানে নিঃশ্বাস নেওয়ার সময় পাচ্ছি না, জীবন একদম झंडू बम। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा so many questions is there। हाँ तुम लोग कुछ ट्राई करना, फिर नहीं तो मैं फिर से और कुछ क्लास दे दूंगा, एक क्लास एटलीस्ट और बाद में। A uniform ladder of mass 10 kg leans against a smooth vertical wall makes an angle 53 with it। तो ऐसा एक वर्टिकल वॉल है, इसमें एक यूनिफॉर्म लैडर है, ऐसा करके ये एंगल 53 डिग्री है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये इसका सेंटर है। सुन लो हाँ, तो टोटल मास ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास यहीं पे होगा 10 जी, हम लोग जी का वैल्यू 10 रखे हैं। हाँ, मेकिंग एन एंगल 53 डिग्री विथ इट, द अदर एंड रेस्ट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, find the normal force and the frictional force that the floor exert on the ladder। तो देखो ये मेरा रफ है, तो अगर मैं, और ये मेरा स्मूथ है, तो ये क्या करेगा? नीचे जाएगा, तो इस लैडर का टेंडेंसी किधर होगा? इधर जाने का होगा कि नहीं बोले? हाँ यस सर। तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इधर, इधर है एक नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे एक है नॉर्मल रिएक्शन। मुझे इसका मानो मैंने लिख लिया N2, इसको लिख लिया N1, और क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द नॉर्मल फोर्स एंड द फ्रिक्शनल फोर्स दैट द फ्लोर एक्सर्ट ऑन द लैडर। मतलब मुझे N2 एंड F का वैल्यू चाहिए। मैं पहले से आंसर लिख के रखता हूं, तब तुम लोगों को ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू दिया है 65 न्यूटन, आई डोंट नो, एंड N2 का वैल्यू दिया है कितना? N2 का वैल्यू है वेट, मतलब 10G, मतलब 100 न्यूटन। ओके, सो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन विदाउट सीइंग एनीथिंग। देखो अगर ये 53 डिग्री है, ये 37 डिग्री, हालांकि जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखो, as the net force is 0, upward force balance downward force, यस सर। so can we write N2 equals to 10G? हाँ। पहला वाला मिल गया। यस सर। And N1 equals to F, is it okay? यस सर। लेकिन N1 या F मुझे नहीं मालूम है। अब देखो सेकंड वाला निकालने के लिए, क्योंकि नहीं मालूम है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? A B C किसी के रेस्पेक्ट में मैं नेट टॉर्क 0 कर रहा हूँ। तुम जो बार बार बोला ना सेंटर के रेस्पेक्ट पे होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। इफ द सिस्टम इज इक्विलिब्रियम यू कैन सपोज विद रेस्पेक्ट टू A। মানে ট্রান্সলেশনাল মোশনে আছে, মানে ফোর্স তোমার অ্যাক্সিলারেশন প্রডিউস করছে, যেটা আলফা না। না না, তাহলে তো আলাদা ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে। আমি তো নরমাল কেসে বলছি যে যদি এটা এখানে আছে আর কি, মোশন করছে তখন তো সেটা রোলিং এর গল্প চলে যাচ্ছে, তখন তো তার সেন্টারটা নিয়ে ভাবতেই হবে, ঠিক আছে? কারণ তার যে টোটাল স্পিডটা, মানে মনে কর যেমন দেখ একটা কার মুভ করছে, ঠিক আছে, তো কারের যে স্পিড দেয় সেটা হচ্ছে ট্রান্সলেশনাল মোশনের স্পিড, কিন্তু ওর চাকার যে স্পিড সেটা কিন্তু আলাদা, মানে রোলিং আলাদা হয়, বুঝতে পারলি? হ্যাঁ।
ওটা আমরা নেক্সট ক্লাসে ডিসকাস করব। আচ্ছা, now see we can suppose a b, let that point is c, so you can say net torque is 0 about any point. Suppose net torque is 0 about suppose b, हम लोग b के रेस्पेक्ट पे लिया, तो मुझे इसको टारगेट करके नेट फोर्स 0 करना है, ठीक है, इसको टारगेट करके नेट फोर्स 0 करना है। लेकिन हाँ, n1 निकालोगे तो भी मेरा काम हो जाएगा, बिकॉज n1 इज f1। तो देखो इसको अगर करोगे टारगेट, तो ये वाला फोर्स इधर जाएगा, ये क्लॉकवाइज जाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, बोलो, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। और ये जो जा रहा है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ पे आना है, तो क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी। ठीक है ना, T2 is anti-clock, so T1 is clockwise and T2 is anti-clockwise। T1 का फोर्स कितना है? 10, और अगर मैं इसको A B, इस डिस्टेंस को D, इस डिस्टेंस को E मानता हूं, तो देखो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैन बी राइट BD। यस सर। और इसके लिए देखो, अगर ये मेरा फोर्स है तो ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो मतलब N1 into can we write AE? यस सर, यस सर। और इसमें मेरा कॉमन है ये, तो मैं इसको उड़ा सकता हूं। तो अगर मेरा ये है एंगल दिया हुआ along the base cos perpendicular with the base sin, can we say that? है। तो मैं इसको AE को AB cos 53 डिग्री बोल सकता हूं, यस सर। और BD को हाफ ऑफ BE बोल सकता हूं। হাফ করে নেবা, ফুল নেওয়া উচিত তাহলে তো হিসেবে। আরে হাফ অফ BE বলছি তো, আমার তো এই ডিস্টেন্সটা লাগবে না, এটার হাফ না, হ্যাঁ। ঠিক है? यस सर। So what we can write? AB sin 53 degree by 2. Is it okay? Is it okay? यस सर। AB उड़ा दिया। अब देखो, मैंने तुम लोगों को बार बार बोला था HC वर्मा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, tan 53 डिग्री 4/3 परपेंडिकुलर बाय बेस, तो sin 53 डिग्री 4/5 cos 53 डिग्री 3/5। तो लगाओ वैल्यू, 4/5/2 N1 3/5, 5 गया, ये गया 2, तो N1 is 10 into 2/3। मैंने यहाँ पे 10 किस लिए लिया था? अच्छा, ये 10 नहीं, 10G होगा ना, तो इंटू G होगा, तो 10G का मतलब क्या है? अरे क्या कर रहा हूँ, ये 3 होगा ना, तो मतलब 200/3, 200/3 कितना होता है? 200/3 ही होगा यहाँ पे। 66 हाँ, 66 पॉइंट समथिंग। ये लोग 9.8 लिया होगा। साला कब 9 लेता है, कब 3 लेता ऐसा है, पता ही 9.8 नहीं चला। हाँ 9.8 हाँ 9.8 लिया है, इसलिए 65 है। 2/3 देखो ना, उतना कुछ नहीं, इसमें 2/3 W है, तो W का वैल्यू 100 है, तो 200/3 न्यूटन आया, तो ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मेरा हाथ सब दर्द कर रहा है। चलो बाय बाय एवरीवन। मैं आज रात तक